Hi, hello everyone. So, welcome back. I'm Shalu Wadhwa, and today we will study about electrostatics. Electrostatics is itself a study of charges at rest. सो बेसिकली अब यहाँ पर हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि चार्जेस का फिज़िकल मीनिंग क्या है एंड कैसे उनकी एग्जिस्टेंस की डिस्कवरी हुई, कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़, किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं डिफरेंट बॉडीज़ डिफरेंट एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में एंड ऑल दैट. सो स्टार्ट हेयर. सो फर्स्टली क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं. मीनिंग ऑफ चार्ज एंड चार्ज बॉडीज़, व्हाट डज चार्ज मीन, एंड चार्जिंग बॉडीज़ का क्या मीनिंग है, हाउ वी कैन चार्ज ए बॉडी और हाउ वी कैन डिस्चार्ज ए बॉडी, हाउ वी यूज़ अ चार्ज बॉडी, how we can charge a body. These all subtopics. Discovery and types of charges, behavior and characteristics of charge and charged particles, किस तरह का behavior show करते हैं. Conservation and quantization, what does it mean. Methods of charging, how we can charge a body by conduction, induction and friction. And obviously by friction method we have charged many bodies just in childhood for fun actually. So we'll see some practical examples of these. And next is effect of charge on other charges, neutral bodies, electrical field intensity. This is basically a field, an area around a body. जैसे हम बोलते हैं this is my area, this is my area, this is his area. So just like that, एक चार्ज का अपना एरिया है जहाँ उसका अपना इन्फ्लुएंस है, वो किसी दूसरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस कर रहा है. दैट इज इट्स फील्ड. एंड ऑब्वियसली इट्स स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. एंड वील सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, हाउ वी कैन डिनोट इट बाय इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, हाउ वी कैन डिनोट its strength, how weak it is, how strong it is, how uniform it is, how non-uniform it is. We will show all that by electric lines of forces. Electric flux and Gauss law of electrostatics. So electric flux का basically meaning यही है कि how many electric lines of forces or how strong that electric field there is. And Gauss law of electrostatics, obviously Gauss defined that, and he gave an statement regarding about the electrostatics, about the forces, about the flux around a charged body, and electric potential and potential difference, which we obviously we can relate it to an electric cell, electric battery we use in our daily lives. And capacitor and capacitance, obviously तुमने नाम सुना होगा कैपेसिटर, कंडेंसर we use in electric motors, pump motors or electric fan or somewhere else. Series and parallel combination of capacitors, so how we can use different capacitor combinations to have different values of capacitances, and practically using that in our daily lives. Some derivation for it, and obviously some numerical problems we'll solve on that. So firstly, what is electrostatics? थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में. व्हाट इज़ चार्ज? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज का क्या लेना देना है आपस में. सो फर्स्टली देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ए ह्यूज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ए ह्यूज पार्ट ऑफ फिजिक्स, एंड obviously a huge part of our daily life, because we use in daily life many electrical appliances, electric fan, electric motor, electric bulb, electric you can say television, or charging bodies, like we can charge our mobile phones, and obviously many more things. Electric iron, electric we have today electric like systems for heating, for cooking, many more systems we have just on the basis of electric cars we have, electric bicycles we have, and these things. So basically there is a huge part, a huge
use of electric phenomena, electrodynamics, electromagnetism phenomena. So electromagnetism basically includes two main branches, electrostatics and electrodynamics. So electrostatics is the study of charges at rest, and electrodynamics is the study of charges in motion. So when charges are in motion, they produce current, and obviously then there is some magnetism around them and some electromagnetic induction phenomena and these things. अभी हम उसमें नहीं जाते हैं. सो वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं चार्जेस को जब वो रेस्ट पर हैं, तब वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, किस तरह से दूसरे बॉडीज़ को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से हम एक बॉडी को चार्ज किसी दूसरे बॉडी के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, किस तरह से चार्ज कंजर्व्ड है, अगर कंजर्व्ड है तो हम कैसे दूसरी बॉडी को चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑल दैट थिंग्स. सो फर्स्टली व्हाट इज़ चार्ज. तो चार्ज जो है एक इनहेरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है. इनहेरेंट दैट मीन्स लाइक ए फंडामेंटल क्वांटिटी, लाइक ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और वी कैन से एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कोई भी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुई है. सिंपली हम इसको अपनी ही टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. चार्ज को किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया जा सकता है. जैसे कि हमने मास को डिफाइन किया कि मास क्या है, एक किसी भी मैटर के अंदर, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, किसी बॉडी के अंदर कितना वो सब्सटेंस उसके अंदर है, दैट इज़ इट्स मास. सो मास को हम कहीं दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते हैं. मास का हम यूज़ करते हैं फर्दर क्वांटिटीज़ को डिराइव करने के लिए. फोर्स वी कैन एक्सप्लेन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन. सो कितना बॉडी का मास है और वो कितना एक्सेलरेट कर पा रहा है, वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है. सो that is about mechanics. We will not get into it very deeply. Just we have to understand that charge is a fundamental quantity, a fundamental property which cannot be derived from any other quantity. So this is first thing. Main thing about charges that defines charge is due to it any body can exhibit, can show any electric and magnetic phenomena, any magnetic effect. So because of charge, because of that charged particles or charged quantity present in a body, the body shows its electric effects, its magnetic effect. Now we cannot say अगर एक बॉडी इलेक्ट्रिक नहीं है, मीन्स अगर हम ये बोलें कि जैसा कि अभी तक जो हमारे माइंड में इमेज है कि अगर वो बॉडी कंडक्टर है, कंडक्टिंग है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक है, एंड इफ इट इज़ नॉन कंडक्टिंग देन इट इज़ नॉन इलेक्ट्रिक. जस्ट हमने अभी तक यही पढ़ा है. तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक नहीं है मीन्स उसके अंदर चार्ज नहीं है या चार्ज पार्टिकल्स नहीं है. एवरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. सो फर्स्ट जो इसका डिस्कवरी हुई चार्जेस की, चार्जेस के एग्जिस्टेंस डिस्कवर हुई, उसी के साथ ये चीज़ एक्सप्लेन हुई कि कोई भी बॉडी बिना चार्ज के एग्जिस्ट नहीं करती है. एट मैक्रोस्कोपिक लेवल जहाँ तक हम देखते हैं, मोस्टली जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मटेरियल हमारे पास स्टेन रहता है, दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स, एंड an atom consists of different electrons, protons and neutrons, and these are charged particles. Electrons are negatively charged particles, protons are positively charged particles, and neutrons are neutral particles. Now neutral does not mean that there is no charge. Alright, that is next is SI unit of charge is coulomb. So next we see how the charges were discovered and how different types of charges were explained. सो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था, डिस्कवरी जहाँ से हमें क्लियर हुई, जहाँ से हमें चार्जेस के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला, दैट वाज रबिंग. एक एम्बर की रोड, एक एम्बर जो है जिसका उनकी लैंग्वेज में जो मीनिंग था दैट वाज इलेक्ट्रॉन. सो हम उस पर भी आते हैं. फर्स्टली क्या किया गया था, एक एम्बर की रोड को एक वूल के साथ रब किया गया, तो वहाँ उसने कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी शो की. या फिर हमने सिल्क क्लॉथ को जब सिल्क क्लॉथ की हेल्प से हमने जब ग्लास रोड पे रब किया, तो वहाँ हमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी दिखी कि वो रोड जो है या फिर वो जो क्लॉथ है वो कुछ स्मॉल पीसीज ऑफ
अगर हमने कुछ पेपर पीसीज रखे हैं, कुछ ड्राई लीव्स रखी हैं, कुछ बहुत लाइट वेट पार्टिकल्स अगर रखे हैं, तो वो उन्हें वो अट्रैक्ट कर रहा था आफ्टर रबिंग। एंड इस तरह की प्रॉपर्टी शो करने की वजह से इन्हें इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोला गया। विलियम गिलबर्ट was the person, was the scientist, was the physicist who explained this, who did this experiment। and obviously amber से related था, amber meant for electrons, that is why they were called as electric materials after showing this property of attraction on rubbing। अभी हम उन्हीं को कंडक्टर्स बोलते हैं। एंड अपोजिट टू इट, similarly we can call insulators as नॉन इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। जिन मटेरियल्स ने इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करी, जो अट्रैक्ट नहीं करते हैं किसी लाइट वेट पार्टिकल्स को या किसी भी बॉडी को अफेक्ट नहीं करते हैं आफ्टर रबिंग और आफ्टर दिस फ्रिक्शन प्रोसेस, they were called as non-electric materials and now we call them as insulators। Now insulator does not mean that there is no charge existing on them। थोड़ा थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ तक पहुँचेंगे कि किस तरह से इंसुलेटर्स के पास चार्ज है, उसके बाद भी वो एक इंसुलेटर है, वो कंडक्टिंग नहीं है। So about 100 years later, डी फे discovered two types of electrification। दो टाइप्स के इलेक्ट्रिफिकेशन, जो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हमने डिस्क्राइब किए, दो तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस को डिफाइन किया उन्होंने एज टू टाइप्स ऑफ चार्जेस विद द प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो तरह के चार्जेस डिफाइन किए गए जिनको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाद में असाइन किया नेम एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एंड देयर वाज ए प्रॉपर्टी रिलेटेड टू देम, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। Like charges mean positive and positive charges are like charges, they repel each other। Similarly negative and negative charges repel each other। It also depends on their magnitude कि कौन कौन एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा है, कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। ऑब्वियसली देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दे apply a force of attraction on each other। So this was something about discovery and types of charges। So इससे पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ फ्रिक्शन प्रोसेस को देखें कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किस तरह से किया जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा है कि एक एटम में सेंटर में एक न्यूक्लियस है जहाँ पर पॉजिटिव, फर्स्टली होल मास जो है, वी कैन से कि ऑलमोस्ट जो टोटल मास है एटम का वो वहीं उसके सेंटर में न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स, वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड उनका मास ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा मूव भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में negatively charged particles that are electrons, they revolve with different rules of their existence, different rules of their number of existence in different orbits। and this was all about an atom। so how we can charge a body by friction, or what is the charging by friction process? So we see that। सो हेयर आई हैव ए पीस ऑफ पेपर एंड मैं इसको कट करके स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करूँगी। उसके बाद हम एक छोटा सा एक फ़नी सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिक चार्ज। सो अभी मेरे पास जस्ट ये एक ट्यूब है जस्ट, एंड मैं इसको फ्रिक्शन से थोड़ा सा चार्ज करूँगी। और ये हमारे पास ये कुछ पेपर पीसीज हैं, अगर हम इन्हें क्लियरली देखें तो इस तरह के कुछ पेपर के पीसीज हैं। और इसको रब करके पहले हम इसको फ्रिक्शन अप्लाई करके चार्ज करेंगे इस रोड को, उसके बाद हम यहाँ से पेस्ट करके देंगे। अभी हम अगर इसको इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर रख रहे हैं, जस्ट एक भी पीस पेपर का जो है इस पर पेस्ट नहीं हो रहा है, मीन्स इससे स्टिक नहीं हो रहा है।
ओके, नाउ हम क्या करते हैं, इसको मैं रख देती हूँ एक बार साइड में, एंड आई जस्ट चार्ज इट बाय अनदर बॉडी. सो जस्ट एक क्लोथ को मैं इसके ऊपर रब कर रही हूँ जिससे इस पे कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाए. नाउ अब मैं इसको अगेन वही पेपर पीसीस के ऊपर रखती हूँ. ये पेपर के पीसीस हैं और इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको रखती हूँ जितना भी ये कवर कर पाए. एंड हम देखें तो इस पे कुछ पेपर के पीसीस स्टिक हो गए हैं. अगर मैं इसको इस तरह से रिमूव करूँ, देखो ये आपको नीचे गिरते हुए दिख रहे होंगे. अगेन करते हैं एक बार. ये पेपर के पीसीस हैं यहाँ पर, और ये इससे अगर हम इसको स्टिक करके देखें, इससे कुछ भी स्टिक नहीं हुआ. एंड नाउ अब क्या करते हैं, हम इसको चार्ज करते हैं. So again I'm charging it by friction. This is just a piece of cloth and I am rubbing it. आप ट्राई कर सकते हैं इसको, और इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं. एक बैलून ले सकते हैं आप, जस्ट एक बैलून को आप एयर ब्लो करके और उसके बाद हम उसको भी इस तरह से रब कर सकते हैं और वो भी इस तरह के कुछ पीसीस को अट्रैक्ट करता है. जस्ट वो चार्जिंग की प्रॉपर्टी शो करता है कि उस पर कुछ चार्ज आ जाता है. तो जस्ट लाइक दैट ये कुछ पेपर के पीसेस इससे स्टिक हो गए. इस तरह से हम इसको रिमूव करें. सो इस तरह की प्रोसेस है कि जस्ट हमने क्या है, जब हमने इस रोड और इस क्लोथ को जब आपस में रब किया तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास. लेट्स सपोज इस क्लोथ से कुछ नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो लूजली बाउंडेड थे उस एटम से उस एटम के वैलेंस शेल में, वो ट्रांसफ़र हो गए रबिंग के प्रोसेस की ड्यूरिंग. क्योंकि रबिंग से हमने क्या किया, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, उन दोनों आउटर मोस्ट जो इनकी शेल्स हैं उनके एटम्स की, उनको आपस में रब किया, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और उस डिस्टर्बेंस की वजह से चार्जेस का मूवमेंट हुआ. चार्जेस जो है, चार्जेस का ट्रांसफ़र हम कहेंगे, मूवमेंट नहीं, चार्जेस का जस्ट ट्रांसफ़र हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होकर के दूसरी बॉडी में गए हैं तो वहाँ ओवरऑल हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और जहाँ जिस बॉडी के पास वो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. दैट्स वाई these both bodies are now charged. This is positively charged body and this is negatively charged body. Initially these both were neutral bodies which have both same amount of negative and positive charges. इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देखते हैं. सो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, जस्ट अगर मैं कुछ पेन यूज़ करके और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ मैथमेटिकली, सो इट्स लाइक दिस. लेट्स डू ए कैलकुलेशन. सो लेट्स सपोज दिस इज़ अ सिल्क क्लॉथ हैविंग एन एटम with some 5 unit of positive charge and 5 unit of negative charge. So we have 5 positive and 5 negative on an atom of silk cloth. And similarly on the glass rod, this was for silk cloth, and for glass rod I have 4 unit of positive charge and 4 unit of negative charge. Just a supposition, not actually I know about that, so just an imagination. Now what I did,
I rubbed the silk cloth on the glass rod. Silk cloth on glass rod. So हमने बोला कि जैसे ही वो रबिंग की उसकी वजह से कुछ चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ. ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, दैट इज फोकस्ड, दैट इज सेंटर्ड इन इट्स न्यूक्लियस. सो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका ट्रांसफर होगा, और उसके ट्रांसफर की वजह से लेट सपोज 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है. इनिशियली दिस वाज न्यूट्रल and this was also overall neutral. Now as we rubbed both, so what happened, 1 unit of negative charge, or we can say 1 electron from silk cloth is transferred to glass rod. So extremely sorry, in this process glass rod gets positive charge, so the negative charge or electron will be transferred from glass rod to silk cloth. So let's suppose 1 unit of electron is transferred from glass rod to silk cloth. So as 1 electron is transferred, glass rod पर overall charge क्या होगा after the process? This was before the process, 4 plus and 4 minus, overall neutral. After the process it will get 4 plus, obviously the same, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है. दैट्स वाई इट विल बी हैविंग ए 3 माइनस ऑफ चार्ज, मीन्स 3 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट और हैज बीन मूव्ड फ्रॉम इट. एंड आफ्टर द प्रोसेस silk cloth will be having 5 positive and 6 negative. That's why now it has overall 1 unit extra negative charge, that's why it is negatively charged, and glass rod is having 1 unit lesser negative charge, that's why it is having overall positive charge. So this was before the process, this was the system, and after the process this is the system, means we are having positive glass rod and negative silk cloth. नाउ हमने कहीं बाहर से कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं दिया है, बाहर से कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया है, कोई सप्लाई नहीं प्रोवाइड की है, जस्ट बाय फ्रिक्शन हमने दोनों बॉडीज को चार्ज कर दिया है. एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड नेक्स्ट सेकेंड बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आ गया. जस्ट दोनों बॉडीज का ही आपस में चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, दैट इज इंटरचेंज ऑफ चार्ज, or we can say redistribution of charge, we can say it. And this also proves the conservation of charge, because charge is overall conserved in the system consisting of a glass rod and a silk cloth. एक सिस्टम था हमारे पास जिसमें एक ग्लास रोड थी, एक सिल्क क्लोथ थी, दोनों को रब किया. इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे, ओवरऑल कोई भी चार्ज वहाँ पर नहीं था, हमने कोई सप्लाई नहीं दी, कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई नहीं किया. जस्ट आफ्टर रबिंग we have both bodies as charged bodies. One is having positive charge and one is having net negative charge. So that is the process of charging by friction. And this also proves second property of charge, that is quantization of charge. As we said, 1 electron has been transferred, or 1 unit of charge is transferred, 1 unit of negative charge has been transferred from one body to another body. So this is all what conservation of charge or quantization of charge says, that charge exists only in some basic units or some integral form of basic units, and that basic units is the charge on an electron, that is equal to minus 1.6 multiply 10 raised to power minus 19 coulomb. You see that? So this was the charging by friction method. After that, properties of electric charge. We have electric charge is a scalar quantity, and scalar quantities के बारे में काफ़ी कुछ हम जानते हैं कि scalar quantities directly additive होती हैं, हम कोई भी scalar की properties वहाँ पर apply कर सकते हैं. It is not having any direction, it just has its magnitude. Conservation of charge means total charge in an isolated system remains constant, that we proved earlier just now.
And quantization of charge means charge occurs only in integral multiples of a basic smallest unit of charge, and that basic smallest unit of charge is an E. E is the smallest independent charge existing, which is equal to charge on an electron, that is equal to minus 1.6 multiplied 10 is to power minus 19 coulomb. And mathematically representation of quantization of charge is total charge Q is equal to N multiply E, where Q is the total charge on the system. We generally denote charge by Q symbol, and is equal to N, that is an integer or a complete number 1 2 3 4 5, and E is the smallest independent charge. Next is methods of charging. 3 methods we have: conduction, induction and friction. फ्रिक्शन अभी हमने स्टडी किया, क्या है, क्या मीनिंग है, किस तरह से फ्रिक्शन प्रोसेस से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं. सेकेंड इज बाय कंडक्शन. इन कंडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अगर हम डायग्राम में देखें तो कंडक्शन प्रोसेस में क्या है, जस्ट एक न्यूट्रल बॉडी थी हमारे पास, उसको हमने एक चार्ज रोड हम उसके पास लेकर गए और उसके कांटेक्ट में लाए, एक नेगेटिवली चार्ज रोड. उसकी वजह से वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफ़र हो गए एक न्यूट्रल बॉडी पर और उस न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बना दिया, दैट इज़ चार्ज्ड बॉडी. सो जस्ट हमने बाय कॉन्टैक्टिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हमने एक चार्ज रोड के एक न्यूट्रल बॉडी को कंडक्शन बनाया, कंडक्टिंग बनाया, एक चार्ज रोड बनाया. और इन इंडक्शन वी हैव नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज, कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है. अगर हम इसको डायग्राम से समझें, वी हैव हेयर एन इबोनाइट रोड विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, एंड एक मेटल स्फीयर है हमारे पास. ऑब्वियसली एक मेटल स्फीयर है मीन्स एक कंडक्टिंग मटेरियल है, एक कंडक्टर है, लेकिन एट करेंट टाइम, एट दिस टाइम दिस इज हैविंग नो चार्ज, और वी कैन से दिस इज हैविंग equal amount of negative and positive charge, that is overall neutral, and it has an insulating stand. insulating stand हमने इसलिए लिया है ताकि वो चार्ज जो इस पर हम इंड्यूस करेंगे बाय इंडक्शन प्रोसेस वो डायरेक्टली अर्थ में जा कर के इंसुलेट ना हो जाए, मीन्स न्यूट्रल ना हो जाए, तो उसके लिए हमने इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया है. तो इबोनाइट रोड से हम नेगेटिवली चार्ज हम रोड उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं लाएंगे, जस्ट उसके क्लोज में लेकर के आएंगे. उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा बाय द प्रॉपर्टी दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो नेगेटिवली चार्ज जो रोड है जो हम उसके क्लोज में लेकर आ रहे हैं, उस नेगेटिवली चार्ज से this negative charge on the road will attract the positive charge of this sphere of this metal on its side. क्योंकि मेटल स्फीयर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही इक्वल अमाउंट में हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ ओवरऑल न्यूट्रल. नाउ जब हम इसके क्लोज में एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर के आएंगे, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इन कॉन्टेक्ट. अगर हम इसको यहाँ देखें तो यहाँ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है दोनों बॉडीज़ का, जस्ट वो क्लोज लेकर के आए हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज जो रोड है, इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस मेटल स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. दिस वे एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और एक चार्ज पर नेगेटिव चार्ज, मीन्स सेपरेशन ऑफ चार्जेस यहाँ होगा, और उसकी वजह से उस स्फीयर पर चार्ज प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा. और उसके बाद हम कर सकते हैं, अगर हमें स्फीयर पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज चाहिए इन रिजल्ट, सो हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास ग्राउंड करने का मीनिंग है सिंपली कनेक्टिंग टू ग्राउंड. जस्ट एक वायर हमने कंडक्टिंग वायर वहाँ से कॉन्टेक्ट में ला करके ग्राउंड पे कॉन्टेक्ट में ला दी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो जस्ट ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड ओवरऑल उस रोड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. So this is the way of conduction and induction process of charging. and एक अपने अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था एक ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ का, उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमने 2 ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आया है, दोनों रोड्स को अलग अलग से हमने कॉन्टेक्ट में ला करके फ्रिक्शन प्रोसेस से दोनों को पॉजिटिव चार्ज किया है. उसके बाद अगर हम दोनों ग्लास रोड्स को आपस में
क्लोज लेकर के आते हैं तो दोनों ही सेम चार्ज होने की वजह से आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक रिपल्शन का फोर्स क्रिएट करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द वे टू शो the basic property of charges, that is like charges repel each other and unlike charges attract each other. Okay, so these were different methods of charging. Next is Coulomb's law of electrostatics. So Coulomb's law of electrostatics explains about the influence of one charge over another charge or any neutral body. So every single charge affects another charge or neutral body or any other charged particle. Effect is given by the force. Obviously जो force experience कर रहा होगा दूसरा charge या कोई दूसरी body, that shows the effect of the source charge. अब यहाँ पर हमारे पास एक source charge होगा, एक test charge होगा. टेस्ट चार्ज जो हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक सोर्स चार्ज का कितना इफेक्ट है दूसरे चार्ज पर, उसके लिए Law states that magnitude of electric force between two charges is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers. थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, इसको इजीली क्लियर होगा. सो यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. मे बी दे ऑफ सेम नेचर और डिफरेंट नेचर, मीन्स दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, या फिर अपोजिट चार्जेस हो सकते हैं, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. सो दोनों का इफेक्ट क्या होगा, दोनों के सेंटर्स में डिस्टेंस है टोटल r. सो उसकी वजह से अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो वहाँ पर रिपल्शन फोर्स होगा. तो फोर्स जो होगा, जो कूलम्स लॉ से एक्सप्लेन होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू FE. वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल टू basically it is directly proportional to the magnitude of two charges Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of distance between them, that is r. So F is equal to K Q1 Q2 by r square, where K is the proportionality constant and it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. And here epsilon naught is the electrical permeability of a material of vacuum in case of epsilon naught, and we denote epsilon as the relative absolute permeability of the medium. जो भी मीडियम हम कंसिडर कर रहे हैं उन चार्जेस के लिए, अगर वैक्यूम हम कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं. एंड एप्सिलॉन नॉट, दिस एप्सिलॉन नॉट हैज़ इट्स वैल्यू इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. So we can calculate it and we can use that. K is equal to total 9 multiply 10⁻⁹, and obviously we can calculate the units by using the basic formula, that is this. F is in Newton, Q1 and Q2 are in Coulomb, and R square is obviously is meter square. So here the force showing, these both charges are of same nature, that's why it is a repulsion force. Q1 repels Q2 in this direction and Q2 repels Q1 in this direction. And in case of opposite nature of charges Q1 and Q2, Q1 attracts Q1 in this direction and Q2 attracts Q1 in this direction. So this way Coulomb's law may be interpreted mathematically. So this is all Coulomb's law, which explains the electric force between two charges, which is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, now next, electric field. We will see electric field in the next lecture. So अभी यहाँ तक जो हमने किया उसको एक बार summarize कर लें हम. That is, initially we studied about definition of charge, meaning of charge, properties of charge, behavior of charge, what is charge at rest, what is meaning of charged bodies, uncharged bodies, neutral bodies, what is positive negative charge, and also methods of charging a body, conduction, induction and friction.
फ्रिक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को आप कवर करेंगे कुछ प्रैक्टिस के बेसिस पर. और आफ्टर दैट व्हाट इज़ कूलम्स लॉ, व्हाट इज़ force of attraction or repulsion, what is the magnitude, what is the nature of that force which a charge applies on another charge or influence other charge. And this is all about today. In next lecture we will see electric field intensity, and electric potential, electrical capacitance, and that's all. Thank you.